Sahani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with a new video for class 9th in which we are starting with the poem Rain on the Roof. So let's get started to this one. Rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds and it's raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो बेसिकली यहाँ पे जो पोयट है आपकी कोट स्किनी. शी इज आस्किंग कि जब स्काई है, इट इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, बारिश होने वाली है, एंड एकदम से जब आप सॉफ्ट रेन की आवाज सुनते हो, अगर कभी क्या आपने सॉफ्ट रेन की आवाज सुनी है ऑन द रूफ? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? और वो बोल रही है कि जब आपने ये melody of nature सुना, तब आपके मन में क्या thoughts आए? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो basically अब हमें poem में देखना है while poet was listening to the patter of the sound on the roof, तो उनको क्या thoughts आए? Alright, so first I'm reading it for you. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads interwove as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, and she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingle by the patter of the rain. So let's start with the first stanza. When the humid shadow hovered. Basically, यहाँ पे humid shadow का क्या मतलब हुआ? That is black clouds. जब black clouds completely covered है sky से, पूरे starry sphere, here I am talking about the glimmery sky, starry sky, तो जब clouds are covered all over the sky और बहुत melancholy darkness है, melancholy मतलब sad darkness को explain किया गया है, उस टाइम पे gently weep in rainy tears. All right, और उस टाइम पे बारिश होती है, poet is trying to weep in the rainy tears. What a bliss, वो बोल रहा है what a happiness, the poet is saying what a happiness is to press the pillow of a cottage chamber bed. मतलब basically now poet is saying कि ये कितना अच्छा moment होता है कि जब बारिश हो रही है and you are lying on your cottage bed pressing the pillow, you feel happy and you're lying on the bed and you're listening to the patter of the soft rain. Patter जो basically टप 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 आवाज गिरने की आ रही है पानी की, रेन ड्रॉप्स की, जब आप उसकी आवाज सुनते हो ओवर योर हेड, व्हाट अ हैप्पीनेस यू फील. ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं द पोएम इज स्टार्टिंग विद द सैड नोट, क्योंकि पोएट ने डार्कनेस को मेलनकली डिस्क्राइब किया है, सैड डिस्क्राइब किया है. सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग कि जब क्लाउड्स है, जो आपके स्काई है, it is covered with clouds, black clouds full of water, and the darkness, the night seems to be sad. तो उस टाइम पे क्या होता है, बारिश होती है. द पोएट इज कंपेयरिंग दैट रेन टू द टीयर्स ऑफ द स्काई. सो ही इज सेइंग कि स्काई इतना सैड है दैट इट इज क्राइंग, and he's saying that what a blessing, what a happiness is what a happiness is that when you are lying in your cottage bed and listening to the patter of the rain which is coming on the roof. तो यहाँ पे पोएम जो है एक सैड नोट पे स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे बेसिकली नाइट को सैड बताया गया है, और नाइट की सैडनेस कैसे खत्म हो रही है, बाय वाइपिंग ऑफ थ्रू द रेन. ठीक है, रेन ड्रॉप्स से, और वो रेन ड्रॉप्स क्या है, वो टीयर्स है. ऑलराइट, every tinkle on the shingles has an echo in the heart. तो every tinkle मतलब every drop जो रूफ के ऊपर गिर रही है, every rain drop जो रूफ के ऊपर गिर रही है, वो साउंड एक echo की तरह मेरे हाथ में रिपीट हो रही है. And 1,000 dreamy fancies into busy being starts. And poet is saying कि जब ऐसा हो रहा है तो मेरे माइंड में
थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज आ रही है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन आ रही है, एक वूफ की तरह, एक ऊन के रोल की तरह, जब मैं सुन रहा हूं टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, व्हेन आई एम लिसनिंग टू द ड्रॉप्स ऑफ द रेन ऑन द रूफ. ऑल राइट. तो बेसिकली सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कर रहा है, सेकेंड स्टैंजा में पोएट इज टेलिंग हिज ओन फीलिंग. जब वो रेन ड्रॉप्स की आवाज को सुनता है तो पोएट अपनी खुद की फीलिंग बता रहा है. वो बोल रहा है कि जब मैं इस आवाज को सुनता हूँ, रेन ड्रॉप्स की आवाज को सुनता हूँ, तो वो रेन ड्रॉप की आवाज मेरे हार्ट में एक एको की तरह रिपीट होती है. एंड आई फील हैप्पी व्हेन आई लिसन टू दिस. और वो बोल रहा है जब ऐसा होता है तो मेरे माइंड में थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स आती हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज आती है फ्रॉम द पास्ट. ऑल राइट. देन मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब वो लास्ट स्टैंजा पद में बता रहा है कि अब मुझे मेरी मदर की मेमोरी आती है. शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, मतलब कि जो काफी साल पहले जो मेरी मदर मेरे साथ किया करती थी, वो मेमोरी मुझे याद आ रही है. बिकॉज नाउ माई मदर इज नॉट विद मी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स का यहाँ पे कौन हो गया, पोएट एंड हिज सिबलिंग. ऑल राइट. पोएट और उसका जो भाई या बहन थे वो डार्लिंग ड्रीमर्स होते थे. तो उनको रिगार्ड देने के लिए जब वो सो रहे होते थे, ड्रीम कर रहे होते, तो मदर क्या करती थी, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. उनको छोड़ देती थी टिल द डॉन, टिल द मॉर्निंग. एंड जब वो मॉर्निंग में उनको उठाती थी, वो कह रहे वो ही फॉन्ड लुक मुझे आज याद आ रही है मेरी मदर की. एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. जब मैं लिस्ट मतलब लिसन, व्हेन आई एम लिसनिंग टू द रिफ्रेन मतलब साउंड ऑफ द रेन, तब मुझे मेरी मदर की वो फॉन्ड लुक याद आ रही है, जिस तरीके से वो मुझे सुबह उठाती थी. विच इज प्लेड ऑफ कौन सी आवाज से उनको ये सब याद आ रहा है, उस आवाज से विच इज प्लेइंग ऑन द शिंगल्स, जो रूफ पे रेन ड्रॉप्स की आवाज आ रही है उससे, बाय द पैटर्न ऑफ द रेन. ऑल राइट. सो बेसिकली लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है, जैसे उसने सेकंड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया था कि जब वो रेन ड्रॉप्स की आवाज सुनता है तो उसको मेमोरीज याद आती है. इन द सेम वे इन द थर्ड स्टैंजा ही सेइंग कि मुझे मेरी मम्मी की मेमोरी याद आई है, मम्मी की याद आई है. मम्मी मुझे सुबह देर तक सोने देती थी लाइक अ डार्लिंग ड्रीमर. एंड जब वो मुझे उठाती थी, मुझे वो फॉन्ड लुक याद आ रही है when I am listening to the patter of the sound which is playing on the shingles, which is playing on the roof. All right. So अब हम यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं. सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच में जो आपको बताने वाली हूँ वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, जब कोई भी आसपास वाले वर्ड्स का फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, दैट इज एलिट्रेशन. ऑल राइट. सो लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू एलिट्रेशंस इन दिस. फर्स्ट स्टैंजा में ह्यूमिड होवर, यहाँ पे एच एच की साउंड रिपीट हो रही है. सेकेंड लाइन में स्टारी स्वेर, एस एस की साउंड रिपीट हो रही है. फिर थर्ड लाइन में प्रेस पिलो, पी पी की साउंड रिपीट हो रही है. फिर यहाँ पे लाई लिसनिंग, एल की साउंड रिपीट हो रही है. सेकेंड स्टैंजा में बिजी बीइंग, बी बी की साउंड रिपीट हो रही है. देयर थ्रेड्स, यहाँ पे रेपिटेशन है टी की साउंड का. रेन रूफ, यहाँ पे रेपिटेशन है. ऑल राइट. मेमोरी, माई मदर, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया गया है. डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया गया है. फिर नेक्स्ट आता है आपका एलिट्रेशन के बाद ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया इज द साउंड इफेक्ट टू मेक अ ड्रामेटिक इफेक्ट. ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए जो साउंड इफेक्ट आ रही है, जैसे यहाँ पे बेसिकली आपकी साउंड इफेक्ट में क्या आ रहा है, पैटर. ऑल राइट. पैटर, एवरी टिंकल. ऑल राइट. After twinkle, again patter is used here. After patter, again patter is used here. तो ये पैटर बेसिकली किसको डिस्क्राइब कर रही है, साउंड ड्रॉप्स को डिस्क्राइब कर रही है. और नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन. Personification is when you are comparing the quality of a living thing into non-living thing. अब यहाँ पे बेसिकली उसने डार्कनेस को सैड बोला, ऑब्वियसली ह्यूमन क्वालिटी है सैड, और यहाँ पे नाइट को सैड बोला हुआ है, तो यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. फिर सेकेंड स्टैंजा में यहाँ पे रिकलेक्शंस जो है, तो ये जो वर्ड रिकलेक्शन है, यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आप एक मेमोरी को वूफ की तरह वीव कर रहे हो, मतलब उसको संभाल के रख रहे हो, उसको जोड़ रहे हो. तो हियर इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन यूज्ड. ऑल राइट. फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट.
Transferred epithet is when you use an adjective with a noun. All right, जहाँ पे ये melancholy darkness, obviously night cannot be sad, right? तो यहाँ पे sad people को refer किया गया है. All right, तो यहाँ पे transfer epithet है. All right, एक और ट्रांसफर एपिथेट यूज किया गया है यहाँ पे ड्रीमी फैंसीज पे. ऑब्वियसली ड्रीम्स कैन नॉट बी फैंसीज. हियर ड्रीमी फैंसीज आर रेफर टू द पीपल हु आर ड्रीमिंग. ऑल राइट, सो आई होप आपको ये समझ आया हो. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. All right, and for the notes, online and offline classes, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. The link is in the description box. Moreover, you can reach us out on the number given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.